Okay, good morning and Jai Hind. Welcome back. So today we are going to discuss about the chapter Nationalism in India part 2. So today we will discuss what we have read earlier. So earlier we have discussed about the nationalism, okay? And after that we have discussed about that key modern nationalism was associated with the formation of the nation, okay? And after that we have talked about that key how the first world war indirectly impact of the first world war on India, okay, allied power, central power, okay. And we have also discussed about the what types of the problem faced by the India, okay, during the first world war, okay. And we have talked about the Khilafat movement, okay. We have talked about that the non-cooperation movement as well as Satyagraha movement, three Satyagraha movement. First, Champaran Satyagraha. Second was the Ahmedabad, Gujarat, and the third was the Kheda, Gujarat. Okay, so all three Satyagraha we have earlier discussed. We have discussed about the Rowlatt Act 1919 and Jallianwala Bagh Massacre. Okay, so all these things we have discussed earlier. Okay, if you want to see that video with full explanation, you can see in the description box there is a link. You can click on it and you can see that video. Okay, here is a one important event which was occurred, that is what Bardoli Satyagraha. Which one? Bardoli Satyagraha, where Sardar Vallabhbhai Patel got the title of Sardar. Okay, so let's start the today's chapter part 2. So today we will discuss about the toward the civil disobedient. Okay, so earlier we have discussed that ki in February 1922 Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. And why he decided to withdraw the non-cooperation movement? Because he felt that ki movement was turning violent in many places, okay, and Satyagraha needed to be properly trained before they would be ready for the mass struggle, okay. So within the Congress, some leaders were by now tired of a mass struggle and wanted to participate in the election to the provincial council that had been set up by the government of Indian Act 1919. So dear students, why Indian National Congress did not want to participate in the non-cooperation movement? Because he want to participate in the election, and their thought was that ki if in election they can win, then some power will be in their hand. Okay, so that's why they did not participate in the non-cooperation movement earlier. But after that, they have joined the non-cooperation movement. Okay, so let's start with the things ki what are the factors that shaped Indian politics towards the late 1920s. Okay, so the first factor was their world economic depression. What was the first factor? The world economic depression. So due to the economic depressions, agricultural price collapsed after 1930. Okay, so whatever the agricultural things are there, so it was totally affected. Okay, and it's cause of the worldwide economic depressions. Okay, so agriculture prices began to fall from the 1926 and collapsed after 1930. Okay, so as the demand for the agriculture goods fell and the exports declined, okay, and peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. Okay, so that become also a factor that shaped the Indian politics. Okay, what was there? First, worldwide economic depression. Okay, so in the 1930s, countrysides was in turmoil. Okay, it means a state of a great noise or a confusion. Okay, so let's discuss the things in Hindi. तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे रहे थे, ठीक है, 1920 से लेकर के 1930s तक। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की आती है। और वो इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्राइस थी वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो 1930s में ये पूरी कम्प्लीटली
ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, ठीक है। और पीसेंट ने जो भी हार्वेस्ट सेल किए उसके थ्रू वो अपने रेवेन्यू को भी नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। और वो डिप्रेशन किस में चेंज हो गया? इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज हो गया, ठीक है। एक दूसरी बात आती है साइमन कमीशन की, ठीक है। तो साइमन कमीशन, साइमन एक व्यक्ति का नाम था जिनका पूरा नाम क्या था? सर जॉन साइमन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले हमारी जो इंडिया थी, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करती थी, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, ठीक है। तो हालांकि इतने रिवॉल्यूशन हुए और दबाव पड़ा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि चलो हम एक कमीशन सेटअप करते हैं और कुछ चेंज लाते हैं, जो इंडियन पॉलिसीज़ है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सर जॉन साइमन ने एक कमीशन सेटअप किया जिसका नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन। और वो इंडिया में कब आता है बेटा? 1928 में। तो जब वो इंडिया में जैसे ही आता है तो जो इंडियन पीपल्स थे वो काफ़ी अपोज करते हैं, ठीक है। और नारा लगाते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन ना, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। और आपको पता है कि ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे इंडिया में ये फैल जाता है, ठीक है, अपोज करना, ठीक है। तो इसके दौरान क्या होता है कि लाला लाजपत राय और उनके बहुत सारे मेंबर्स इस साइमन कमीशंस का विरोध करते हैं, ठीक है। उस दौरान जो ब्रिटिशर्स द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो उन्होंने कहा था कि जो एक एक लाठी जो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बरसाई है वो कील का साबुत बनेगी, यानी वो रिटर्न उनको मिलेगी। और वाकई में वैसा ही हुआ, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन की बात होती है, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब इंडिया में आया? 1921 में आया। और इसका प्रोटेस्ट किसने किया? कांग्रेस ने इसका प्रोटेस्ट किया, ठीक है। किसका? साइमन कमीशन का। और उस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, लाहौर सेशन कांग्रेस का। कब? दिसंबर 1929 में। तो लाहौर सेशन में जो था वो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? फुल इंडिपेंडेंसी फॉर इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को फुल फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। ये डेट याद रखना। लाहौर का सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था? फुल इंडिपेंडेंसी फॉर इंडिया, यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। ये डेट याद करना। और ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा क्या हुआ था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशंस कैम इनटू एक्ट, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्यों इस दिन लागू किया गया? हालांकि वो 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था, लेकिन क्यों 26 जनवरी 1930 को लागू किया? क्योंकि उसी के दिन यानी 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सब ने मिल करके पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हमें नया करना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड करें कि ये जो डिमांड है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो गांधी ने जी ने क्या सोचा कि जो साल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल बनेगा, ठीक है। वो एक माध्यम बनेगा लोगों को एकजुट करने में। जो आपका साल्ट है वो एक माध्यम बनेगा ये लोगों को एक साथ जोड़ने में। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं, ठीक है। तो उनका एक आइडियाज़ था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करें। क्या? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करें। तो हुआ क्या कि ये ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि बेटा एक वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड की थी, ठीक है। और वो डिमांड क्या थी? कुछ जनरल इंटरेस्ट थे, कुछ डिमांड्स पीसेंट्स की थी, कुछ डिमांड इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। तो ये ऐसे मिलाकर के कुछ 11 डिमांड्स उन्होंने रखी थी और उस डिमांड में हमारा साल्ट टैक्स भी था, ठीक है। तो जब उन्होंने ये डिमांड रखी और उसके बाद उनको एक अल्टीमेटम दिया, ठीक है, कि अगर आप मेरी इस डिमांड को 11 ऑफ मार्च तक अगर पूरा नहीं करते हैं
तब भाई हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो लॉर्ड इरविन को क्या परवाह थी, उन्होंने उनके लेटर को इग्नोर किया। तो हुआ क्या कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये साल्ट मार्च साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक चला। डांडी कहाँ पे है बेटा, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, और कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी प्लेस है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट कौन सा है, गुजरात। वहाँ तक ये यात्रा चली। करीब कितनी चली बेटा, 240 माइल्स। हाउ मेनी, 240 माइल्स की ये दूरी थी, और 78 फॉलोअर, ठीक है, उनके साथ स्टार्ट किए थे या उनके साथ जुड़े थे इस मार्च पास्ट में। और ये 24 दिन तक जो उनके वॉलंटियर्स थे वो चले। और आपको पता है अप्रॉक्स एक दिन में वो 10 मील की दूरी तय करते थे, ठीक है। तो फाइनली वो 6 अप्रैल कहाँ पहुँचते हैं, डांडी के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पे नमक को कानून को वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा तो ऑब्वियसली है कि ब्रिटिशर्स काफ़ी बौखलाए होंगे और गुस्सा होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को और जितने भी फॉलोअर्स थे उनको क्या किया, उन्होंने किडनैप मतलब उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो जब उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी को सभी लोग ने अरेस्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट था, कौन सा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को वापस कर दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आपको पता है कि गांधी जी को बेटा एक गांधी इरविन पैक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी को जनवरी 1931 में वहाँ से उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। और इरविन और गांधी जी में एक समझौता होता है। तो और जो भी बातचीत शुरू की गई थी, तो उसमें बातचीत को जो भी डिमांड थी उनकी वो पूरी की गई। जो भी डिमांड थी गांधी जी की वो पूरी की गई, और उनसे ये भी अनुमति लिया गया कि आप अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंट है, इनको आप क्या कर लीजिए, वापस कर लीजिए, ठीक है। तो जब ये दोनों समझौता हुआ तो उस समझौते को क्या नाम दिया गया, गांधी इरविन पैक्ट। और ये कब हुआ था, ऑन 5 मार्च लॉर्ड इरविन द वायसराय साइंड अ पैक्ट विद द गांधी जी इन दिसंबर 1931। गांधी जी वेंट टू द लंडन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड, एंड गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बट बाय 1930 इट लॉस्ट इट्स मूवमेंट। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक साइन हुआ था कि भाई हम 11 मुझे डिमांड पूरी करनी चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पे लंदन में जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, लेकिन वहाँ पे उनको निराशा हासिल होती है, तो फिर से वो क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फाइनली 1934 में ये सिविल डिसोबीडियंट क्या होता है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कब टोटली जो सिविल डिसोबीडियंट स्टॉप होता है, 1934 में। आपसे पूछ सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो आप बताओगे कि 5 मार्च 1931 को। तो एक साइन होती है किनके किनके बीच में, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में होती है, ठीक है। किसके लिए, कि ये जो 11 डिमांड थी, ठीक है, वो पूरी की जाए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये लोग मूवमेंट को देखते थे, ठीक है। तो रिच पीसेंट किस तरह से मूवमेंट को देखते थे, जो पुअर पीसेंट्स थे वो मूवमेंट को किस तरह से देखते थे, ठीक है। तो रिच पीसेंट कम्युनिटी एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, they did join the movement, and they did not rejoin the movement as the movement was called without revising the revenue rates। तो हुआ क्या कि जो रिच पेशेंट्स हैं, यानी जो आपके रिच फार्मर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि जो रेवेन्यू टैक्स है ये क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये रेवेन्यू टैक्स रिड्यूस करने होंगे, ठीक है। तो अगर वो करेंगे, और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब वो क्या करेंगे, मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जो पुअर पीपल्स थे वो भी चाहते थे कि जो रेंट्स ऑफ लैंड्स हैं वो कम किया जाए, ठीक है। और नो रेंट, जो भी रेंट वगैरह थे लैंड्स के रेवेन्यूज से, उनको क्या किया जाए, पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, ठीक है। और ये जो ज़मीनें हैं उनको क्या कर दिया जाए, फिर से रीसेटल किया जाए। तो ये अलग अलग डिमांड थी किसकी, रिच पीसेंट्स की और पुअर पीसेंट्स की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि बिजनेस क्लासेस की क्या डिमांड थी।
तो आफ्टर द वार द ह्यूज प्रॉफिट्स वर रिड्यूस, वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्टेंट foreign goods, okay, and the spread of the militant activities, worries of the prolonged business disruptions, growing influences of the socialism among the young congress forced them not to join the movement. तो जो बिजनेस क्लासेस थे उन्होंने भी क्या किया था, एक अलग से मूवमेंट्स को वो देख रहे थे, ठीक है। और मूवमेंट्स में वो इसलिए देखना चाहते थे क्योंकि वार के कारण जो उनका प्रॉफिट था वो बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। तो वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते थे और वो चाहते थे कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी उनको एक सुरक्षा दी जाए। जो फॉरेन गुड्स हैं उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो उसमें भी क्या किया जाए, बैन लगाया जाए। और कहीं ना कहीं वीमेंस भी पार्टिसिपेट कर रही थी मूवमेंट में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि साल्ट मार्च में भी वुमेंस का काफ़ी बड़ा रोल रहा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक ये पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से वुमेन नेशनलिस्ट प्रोसेसंस के लिए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से जो हमारे पीपल्स हैं वो मूवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो जो सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, तो इसका लिमिट्स क्या था। तो हम बात करें कि दलित और द अनटचेबल्स डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। क्यों भाई, जो दलित थे और जो अनटचेबल पीपल्स थे वो क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए थे मूवमेंट में, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे लिए भी क्या हो, एक रिजर्व सीट हो, ठीक है, एक सेपरेट आपका इलेक्टोरेट्स हो, मतलब एक अलग से उनका इलेक्शंस कराए जाए, उसमें उनको रिजर्व सीट मिली जाए। तो हुआ क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिनको दलितों का नेता माना जाता है, ठीक है, तो उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया 1930 में, ठीक है, और कॉल द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, और उसको उन्होंने क्या बताया, द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और ही क्लैश विद द गांधी जी, और गांधी जी और महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में विचारों में थोड़ा सा क्लैश होता है, ठीक है। तो एक पूना पैक्ट होता है किसके बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में होता है, कब, 1932 में, ठीक है। और वो इस पैक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और ये पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, ये पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में और किसके बीच में, महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है। तो दोनों के बीच में जब ये हुआ पैक्ट, तो उसमें क्या बात की गई, उसमें बात की गई किसकी, उसमें बात की गई कि भाई जो भी दलित लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा, रिजर्व सीट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग M.A. जिन्ना, ठीक है, वांटेड रिजर्व सीट फॉर द मुस्लिम इन द सेंट्रल असेंबली, यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी क्या चाहते थे कि उनको सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट मिले, ठीक है। और इस तरह से लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी बहुत सारे लोग इस सिविल डिसोबीडियंट में मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो दलित थे, दलित और अनटचेबल पीपल्स थे, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेटेड क्यों नहीं थे, क्योंकि उनको रिजर्व सीट नहीं मिल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और ये जो मुस्लिम थे वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्योंकि उनको सेंट्रल असेंबली में क्या चाहिए, रिजर्व सीट चाहिए। तो वो कौन सा पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है 1932 में। और इस पैक्ट के तहत क्या किया जाता है, इन दलितों को और अनटचेबल पीपल्स को प्रोविंसेस में क्या किया जाता है, सेंट्रल काउंसलिंग में क्या किया जाता है, उनको रिजर्व सीट दी जाती है और उनको वोटिंग राइट्स भी दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा पूना पैक्ट था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो किस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट होती है। तो मैं इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहूँगा इस पिक्चर्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि ये बाल गंगाधर तिलक जी का ये पिक्चर्स है, 20th सेंचुरी में ये प्रिंट की गई थी। तो आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ, ठीक है, बहुत सारे सिंबल हैं और ये सारे सिंबल यूनिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो टेंपल है, चर्च है, मस्जिद है, तो एक ही फ्रेम में सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को एक साथ जोड़ रही है, ठीक है। तो द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्सली थ्रू द experiences of
यूनाइटेड स्ट्रगल ना, सब लोग ने मिल करके एक साथ स्ट्रगल किया, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड फिक्शंस और folklore and the songs and the popular prints and the symbols all played a part in the making of the nationalism। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को क्या करती हैं, बांधती है, ठीक है। तो बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, यानी गांधी जी ने क्या किया, एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया। एंड इट वाज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड वाइट एंड हैड अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर। तो उन्होंने एक स्वराज एक फ्लैग डिज़ाइन किया जिसमें 3 कलर थे, रेड ग्रीन और वाइट था, और उस समय क्या था, उसके बीच में स्पाइनिंग व्हील था। तो ये कलेक्टिंग रिस्पॉन्डिंग यानी एक तरह से कलेक्टिव बिलोंगिंग सेटअप की गई लोगों के द्वारा। और वाकई में इस चैप्टर के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। हमारी भारत माता की पेंटिंग भी डिज़ाइन की गई थी, और भारत माता की पेंटिंग किसके थ्रू डिज़ाइन की गई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर के थ्रू। किसके थ्रू, अवनींद्रनाथ टैगोर के थ्रू। तो इसी के थ्रू हमारा नेशनल एंथम भी बना, ठीक है। तो नेशनल एंथम था, नेशनल सॉन्ग था, नेशनल फ्लैग्स था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिज़ाइन हुई, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था। किसने, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। और भारत माता की पेंटिंग किसने डिज़ाइन की गई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। हमारे नेशनल सॉन्ग को किसने किया था, बंकिम नाथ चटर्जी ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन से आपको पुट अप करता हूँ बेटा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह से आप क्या समझते थे, और इन तीनों सत्याग्रह को आपको क्या करना है, डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आने वाले समय में अब हम मैथ्स, साइंस, ठीक है, इन सब का भी वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।